عثمانی سلطان سلیمان یعنی سلطنت عثمانیہ کے سلطان نام تھا ان کا سلیمان، لیکن وہ قانون پہ اتنا زیادہ چلتے تھے کہ ان کا نام پڑ گیا القانونی، سلیمان القانونی، یہ ان کا نام پڑ گیا۔ ایک دفعہ ان کو شکایت ہوئی کہ جو سلطنت میں درخت ہے نا، ان درختوں کی جڑوں میں بہت زیادہ چونٹیاں پیدا ہو گئی ہیں جو درختوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں، کوئی ایسی چیز ڈالتے ہیں کہ چونٹیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ تو سلیمان اپنی عادت سے مجبور ہو کر خود وہ اس وقت کے مفتی اعظم جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا اس وقت ان کے گھر چلے گئے۔ وہ گھر نہیں تھے تو رکا لے کے چھوڑ آئے۔ چونٹیوں کا معاملہ ہے کہ ہم ان کو تلف کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ شیخ الاسلام کا جواب آیا کہ چونٹیاں صرف اپنا حق لیتی ہیں اور وہ کچھ نہیں کرتی۔ ٹھیک ہو گیا، سلیمان نے کوئی آرڈر نہ دیا۔ آسٹریا جاتے ہوئے ان کی راستے میں موت ہو گئی، انتقال کر گئے۔ واپس لایا گیا انقرہ یعنی ترکی میں۔ ان کی وصیت تھی، وصیت بڑی عجیب و غریب تھی۔ وصیت یہ تھی کہ یہ جو میرا صندوق ہے نا، یہ میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ اب جو زعماء تھے، بقایا لوگ تھے، وہ بڑے حیران تھے کہ صندوق میں جو ہے وہ سونا چاندی مال و دولت۔ تو شورا نے فیصلہ کیا کہ صندوق کھولا جائے۔ صندوق کھولا گیا۔ جتنا عرصے سلیمان قانونی نے حکومت کی تھی نا، وہ سارے حکومت کے جو فتوے تھے مفتیوں کے، وہ فتوے صندوق میں تھے، اور ایک رکا لکھا ہوا تھا کہ اللہ پاک میں ان فتووں پہ چلتا رہا، ہر بات ان سے پوچھی، اگر پکڑنا ہوا تو ان کو پکڑنا۔ شیخ الاسلام وہاں پہ موجود تھے، وہ رونے لگ گئے اور انہوں نے تاریخی فقرہ کہا کہ سلیمان قانونی خود بچ گیا اور ہمیں پھنسا گیا۔ اگر یہ منزل یاد ہو تو کون پھنسے گا اور کون بچے گا، یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر کا نام محمود میادی ہے، جو آپ کی محبتوں کا مقروض ہے، جو آپ کا ممنون ہے۔ تقریباً 2000 لوگ وہ میرا ویلاگ دیکھتے اور سنتے ہیں، بہت مہربانی۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ویری گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 جولائی 2026 تاریخ ہے آج اور دن ہے بدھ کا۔ جب میں پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت شام کے 5:30 بجے ہیں۔ 15 جولائی بہت امپورٹنٹ ڈے تھا ترکی کی جو ہے وہ ہسٹری میں۔ 10 سال مکمل ہوئے ہیں جب فوج نے بغاوت کی۔ رجب طیب اردوان ترکی میں نہیں تھے، لیکن اس بغاوت پہ آج ایک خصوصی سیگمنٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے رکھنا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ، اربوں روپے کا، اور روزانہ مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، ہر کسی کو پتا ہے، اور سرکاری چھتری تلے آپ حیران ہوں گے نا۔ شداد نے ایک جنت بنائی تھی، شداد نے۔ کوئی کہتے ہیں کہ جنت کا نام ارم تھا، کوئی کہتے ہیں علاقے کا نام ارم تھا، بہرحال اس کا نام ارم تھا، اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ یعنی وہاں درخت لگا دیے گئے تھے، پھل لگ گئے تھے، سونے چاندی کے ٹیبل اور برتن لگ گئے تھے، جو جنت کی نشانی ہے وہ ساری پوری کر دی گئی۔ وہ تھی شداد کی جنت۔ یہ جو پاکستان ہے یہ کرپٹ لوگوں کی جنت ہے اور یہ امیروں کی جنت ہے۔
अब ये जजों की जन्नत है। एक ऐसा ऑर्डर कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। जिस तरह इस मुल्क को लूटा जा रहा है ना, अगर मंगोल होते ना, मंगोल, चंगेज खान, हलाकू खान, तातारी, शायद वो इस तरह लूटते, शायद जिस तरह लूटा जा रहा है, और सिर्फ एक शख्स के इक्तदार के लिए। जजों ने क्या कार्रवाई डाली है, बल्कि हुकूमत ने, वो आपको बताऊंगा। आजकल मसला उठा हुआ है शोहदा का। मौलाना फजल रहमान ने एक बयान दिया कि आप लोग तनख्वाह लेते हैं, फिर उस पर रद्द-ए-अमल आया। हमें न शोहदा पे इतराज है, न उनकी अजमत पे इतराज है। हम एक मुख्तलिफ तरीके से बहस करेंगे कि क्या इन शोहदा के जिम्मेदार जर्नैल तो नहीं है, जर्नैलों की मुहिम जोइयां तो नहीं है जो वो मुहिम जोई करते हैं। हालांकि अगर वो मुहिम जोई न करें, फौत तो स्कूल से होगी। इस पे आपके सामने जो है वो कुछ रखना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर है ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारे पास मालूमात हैं कि 90% जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, सैयद मुज्तबा खामेनाई, वो जिंदा नहीं है। इसलिए ईरान कोई फैसला या जो चेन ऑफ कमांड है वो टूट गई है। ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। ईरान ने इसकी सख्ती से तरदीद की है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 90% चांसेस हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर नहीं भी रहे तो ये ईरान के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले आपने सैयद अली खामेनाई को देखा, जर्नैलों को देखा, अली लारिजानी को देखा। बहरहाल हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक मुज्तबा खामेनाई को महफूज रखें, लंबी जिंदगी दें। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, घुमसान की जंग हो रही है, घुमसान की। ईरान के बहुत सारे इलाकों पर हमला किया गया है। उधर ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। कतर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यानी जो सैटेलाइट्स इमेजेस आए हैं ना, जो अल हुदैद या अल हदीद भी पढ़ते हैं, सबसे बड़ा मशरिक वस्ता में एयरबेस है अमेरिकन का, उसकी जो सैटेलाइट्स इमेजेस आए हैं तो वो बिल्कुल ब्लैक है। उससे पहले उसकी और सूरत हाल है, ईरान के हमले के बाद उसकी और सूरत हाल है, वो जला हुआ है, काफी डैमेज है। बहरहाल वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अभी भी जो है वो मुआहदा हो सकता है। एक और चाल चली है अमेरिकन ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। ताजिर है ना, कारोबारी है, माल पकड़ता है और माल जो है वो कमाता है। वो कहता है कि जी जंग तो हम लड़ेंगे, जंग हम लड़ेंगे, लेकिन इसका खर्चा अरब देंगे, और अरब देंगे। अरब बुज़दिल हैं, अरब लानती हैं, वो देंगे कि जी हम 20% टैक्स नहीं लेंगे अपना हुर्मुज पे। कहां अमरीका, कहां अपना हुर्मुज कि हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन खर्चा जंग का सारा वो अरब देंगे। और अरबों ने कहा है कि जी बिल्कुल वो खर्चा देंगे। अगली खबर पाकिस्तान से है। 2 एहलकारों समेत 9 अफराद अब तक जान बहक हो चुके हैं कश्मीर में। आज लॉन्ग मार्च का ऐलान था मुजफ्फराबाद की तरफ। एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि ये लॉन्ग मार्च हो, एस्टेब्लिशमेंट मुतालबात मंजूर नहीं करना चाहती, लिहाजा जो है वो फायरिंग हुई। हुकूमत कह रही है उन्होंने की, वो कह रहे हैं उन्होंने की। बहरहाल ये 9 अफराद जान बहक हो गए हैं। और जो इमेजेस हैं वो इमेजेस वो हैं जिस तरह किसी दौर में हम पीटीवी पे मकबूजा कश्मीर के देखते थे। और जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तेल $87 पर बैरल हो गया। ये 65 तक आ गया था, 65, 66, अब फिर 87 पे चला गया। और सबसे ज्यादा जो मुसीबत आएगी वो आएगी पाकिस्तानियों को। जाहिर है इंडिया नहीं बढ़ाता, बांग्लादेश नहीं बढ़ाता, नेपाल नहीं बढ़ाता, जो
अफगानिस्तान नहीं बढ़ाता, लेकिन पाकिस्तान, अब कल मैंने आपको खबर दी थी, आज भी अखबार में है कि रोज की बुनियाद पे कीमतें तय होंगी। सुबह कीमत और होगी, शाम को कीमत और होगी। पहले इन्होंने ये तजर्बा बिजली पे भी कर रखा है कि 5 के बाद क्या होगा और सुबह क्या होगा। अब पेट्रोल पे कह रहे हैं कि करने जा रहे हैं। फ्रांस को शिकस्त हुई है, वेरी फेवरेट फ्रांस, और गैर मुतवक्को तौर पे हराया है स्पेन ने। बहुत जबरदस्त फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है, और स्पेन वो दुनिया में दूसरे नंबर पे तो आ गया है। अगर वो फाइनल हार भी जाए तो वो दूसरे नंबर पे होगा, फाइनल जीत जाए तो वर्ल्ड चैंपियन होगा। आज दूसरा सेमीफाइनल है अर्जेंटीना और इंग्लैंड का। ये काफी क्रंच मैच होने की तवक्को है, और लोगों के दिलों में मिस्र के मैच के बाद अर्जेंटीना की जो हमदर्दी है, जो अर्जेंटीना की सपोर्ट है, वो कम हुई है मेसी के लिए और अर्जेंटीना के लिए। बहरहाल देखते हैं कि आज दूसरी टीम फाइनल में कौन सी पहुंचती है। जजों के बारे में जिस तरह मैंने बताया कि एक जन्नत बनाई थी शद्दाद ने, इरम, जो आईनी अदालतों का जज है ना, आईनी अदालत का जो खड़ी की घड़ी हुकूमत ने, वो 40 लाख में पड़ रहा है पर मंथ। सुप्रीम कोर्ट वालों को खारिज शुरू हो गई कि हम भी तो खिदमत कर रहे हैं, हमने अपना ईमान बेच दिया, हमने अपनी रूह शैतान को बेच दी, हम अपनी औलाद को हराम खिला रहे हैं, हमारी बेगमात हराम की शॉपिंग कर रही हैं, तो हम यानी दोज़ख लें तो फिर इधर तो कोई मदद करें शद्दाद की जन्नत में। तो 10 लाख पर मंथ तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, 10 लाख पर मंथ सुप्रीम कोर्ट के जजों की। दुरुस्त सुन रहे हैं आप? उधर हुकूमत कहती है कि जिसके पास 8,500 महीना है वो गरीब नहीं है। 10 लाख पर मंथ बढ़ रही है। और सुने, ये जो छोटी अदालतें हैं, सेशन कोर्ट्स, बैंकिंग कोर्ट्स, नैब कोर्ट्स, FIA कोर्ट्स, ये सारी कंटोनमेंट कोर्ट्स, आप जो गाड़ी खरीदते हैं होंडा सिटी, कोरोला, ये मिलती है 40 से 50 लाख के दरमियान। ये गाड़ी जो टैक्स देते हैं जजों को, हुकूमत को, जज अब वो गाड़ी खरीद सकेंगे 2.5 लाख से 3 लाख में। जी, मैंने कहा ना, मंगोल पड़ गए हैं, मंगोल पड़ गए हैं। 2.5 से 3 लाख की वो जो जज हैं लोअर जुडिशरी के पंजाब के, वो 2.5 से 3 लाख में वो गाड़ी खरीद सकेंगे। पैसे दें गाड़ी उनकी, बाकी पैसे हुकूमत देगी। कहां से? आपके टैक्सेस से। फैसला हमारे खिलाफ ना आए, ये खरीदने का नया तरीका है। सुप्रीम कोर्ट के जज की 10 लाख पर मंथ, और जो लोअर कोर्ट्स हैं ये तकरीबन 2,2400 बनते हैं लॉ ऑफिसर जजेस। इनको कहा गया है कि वो 2.5 से 3 लाख रुपया दें, और होंडा सिटी या जो कोरोला है वो जो है वो आप घर ले जाएं। अल्लाह खैर सलाह। हमें जो है वो किसने पूछना है। पाकिस्तान का जो तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड, हर किसी को पता है ये, अब मैं आपके सामने रखूंगा ना, क्योंकि प्रॉम्प्टर मेरे पास नहीं है, मेरे पास सादा सा प्रोग्राम है, तो लिहाजा मुझे ये डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है। जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनका सामने प्रॉम्प्टर लगा होता है, वो वहां से देख लेते हैं, मैं वहां से नहीं देख सकता, मेरे पास है नहीं, बड़ा महंगा है। पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड जारी व सारी, गौर करना है प्लीज। एक नौजवान लंदन के एक बैनुल अक़वामी बैंक में मामूली सा कैशियर था। उसने बैंक के साथ एक ऐसा फ्रॉड किया जिसकी वजह से वो 20वीं सदी का सबसे बड़ा फ्रॉडिया साबित हुआ। वो कंप्यूटर की मदद से बैंक के लाखों क्लाइंट्स के अकाउंट से हर रोज एक एक पेनी निकालता था और ये रकम अपनी बहन के अकाउंट में डाल देता था।
وہ یہ کام 15 برس تک مسلسل کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کلائنٹس کے اکاؤنٹ سے کئی ملین پاؤنڈز چرا لیے۔ آخر میں یہ شخص ایک یہودی تاجر کی شکایت پر پکڑا گیا۔ یہودی پھر آپ کو پتہ ہے، یہ یہودی تاجر کئی ماہ تک اپنی بینک سٹیٹمنٹ واچ کرتا رہا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے اکاؤنٹ سے روزانہ 1 پینی کم ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ بینک مینیجر کے پاس گیا، اسے اپنی سابق بینک سٹیٹمنٹس دکھائیں اور اس سے تفتیش کا مطالبہ کیا۔ مینیجر نے یہودی تاجر کو خبتی پاگل سمجھا۔ اس نے کہکا لگایا اور دراز سے 1 پاؤنڈ نکالا اور یہودی تاجر کی ہتھیلی پر رکھ کر بولا، یہ لیجئے، میں نے آپ کا نقصان پورا کر دیا۔ یہودی تاجر ناراض ہو گیا۔ اس نے مینیجر کو ڈانٹ کر کہا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میں بس آپ لوگوں کو آپ کے سسٹم کی کمزوری بتانا چاہتا تھا۔ وہ غصے سے اٹھا اور بینک سے نکل گیا۔ یہودی تاجر کے جانے کے بعد مینیجر کو شکایت کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ اس نے تفتیش شروع کرائی تو شکایت درست نکلی اور یوں یہ نوجوان پکڑا گیا۔ یہ لندن کا فراڈ تھا، لیکن ایک فراڈ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، یہ آپ نے سننا ہے۔ اس فراڈ کا تعلق پیسے کے سکے سے جڑا ہے۔ پاکستان کی کرنسی 1 اپریل 1948 کو لانچ کی گئی۔ اس کرنسی میں 6 سکے تھے۔ ان سکوں میں 1 روپے کا سکہ، 58، 54، 52، 51 اور آدھا آنا اور 1 پیسے کا سکہ شامل تھا۔ پیسے کے سکے کو پائی کہا جاتا تھا، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی ہے۔ اس زمانے میں 1 روپیہ 16 آنے اور 64 پیسوں کے برابر ہوتا تھا، 64 پائیوں کے برابر۔ یہ سکے 1 جنوری 1961 تک چلتے رہے۔ 1961 میں صدر ایوب خان نے ملک میں اشاری نظام نافذ کر دیا، جس کے بعد روپیہ 100 پیسوں کا ہو گیا، جبکہ 58، 54، 52 اور پائی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ 50 پیسے، 25 پیسے، 10 پیسے، 5 پیسے اور 1 پیسے کے سکے رائج ہو گئے۔ یہ سکے جنرل ضیاء الحق کے دور تک چلتے رہے، لیکن بعد ازاں آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آج سب سے چھوٹا سکہ 1 روپے کا ہے اور ہم نے پچھلے 30 برس سے 1 پیسے، 5 پیسے، 10 پیسے اور 25 پیسے کا کوئی سکہ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک یہ سکے جاری ہی نہیں کر رہا۔ لیکن آپ حکومت کا کمال دیکھیے، حکومت جب بھی پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے تو اس میں روپوں کے ساتھ ساتھ پیسے ضرور شامل ہوتے ہیں۔ مثلا آپ پیٹرول کے تازہ ترین اضافے ہی کو لے لیجئے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 92 پیسے اضافہ کیا، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 266 روپے 13 پیسے۔ یہ مثال ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 273 روپے 65 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 269 روپے 94 پیسے ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ملک میں پیسے کا تو سکہ ہی موجود نہیں ہے، لہذا جب کوئی شخص 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائے گا تو کیا پمپ کا کیشیئر اسے 87 پیسے واپس کرے گا؟ نہیں، وہ بالکل نہیں کرے گا۔ چنانچہ اسے لازماً 62 کی جگہ 63 روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ صورتحال ملاحظہ کیجئے، پاکستان میں روزانہ 3,20,000 بیرل پیٹرول فروخت ہوتا ہے تقریباً۔ اگر اسے لیٹرز میں کیلکولیٹ کریں تو یہ 5,08,80,000 لیٹر بنتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اگر پیٹرول سپلائی کرنے والی کمپنیاں ہر لیٹر پر 87 پیسے اڑاتی ہیں تو یہ کتنی رقم بنے گی؟
1 पैनी लंदन वाली, और ये 87 पैसे। ये 4,42,65,000 रुपए रोजाना बनते हैं, रोजाना। ये रकम हतमी नहीं, क्योंकि तमाम लोग पेट्रोल नहीं डलवाते। कुछ लोग डीजल, मिट्टी का तेल भी खरीदते हैं, और ज्यादातर लोग 5 से 40 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं। और बड़ी हद तक ये पैसे रुपयों में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पैसों की हेरा फेरी मौजूद रहती है। मुझे यकीन है अगर कोई मुआशी माहिर इस इशू पर तहकीक करे, वो पैसों की इस हेरा फेरी को महीनों, महीनों को बरसों और बरसों को 30 साल से जरब दे तो ये अरबों से क्रॉस कर जाएंगे। गोया हमारी सरकारी मशीनरी 30 बार से चंद खुफिया कंपनियों को अरबों रुपए का फायदा पहुंचा रही है, और हुकूमत को क्या नहीं मालूम? नहीं मालूम हुकूमत को? सारा कुछ हुकूमत कर रही है। हम अगर इस सवाल का जवाब तलाश करें तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल साबित हो सकता है। यह भी हो सकता है इस करप्शन का वॉल्यूम 4.5 करोड़ रुपए ना हो, लेकिन इसके बावजूद यह सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा कि जब स्टेट बैंक पैसे का सिक्का जारी ही नहीं कर रहा तो हुकूमत करेंसी को सिक्कों में क्यों माप रही है, और हम राउंड फिगर में कीमतों का तयन क्यों करते हैं? सवाल है। रोज आपका वास्ता पड़ता है पेट्रोल पंप पे या दुकानों से, वो पैसे किधर जाते हैं? ऊपर वाले पैसे। अब 12 रुपए 97 पैसे के वो 12 रुपए नहीं लेगा, वो 13 रुपए लेगा। यह एक और तरीका आया हुआ है यहां दुकानों पे, आपको एक टॉफी उठा दी, ये भी तरीका है। एक टॉफी आपको उठा दी, चूसनी दे दी आपको उसके बदले में, ये हो रहा है, और ये अरबों की गेम है। अब आप इसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो कह सकते हैं। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है, आप सीना जोरी देखें, जितने भी टेलीकॉम टावर्स हैं उस इलाके में जब भी बिजली जाती है तो ये नेट मुअत्तल कर देते हैं। कोई मुतबादल इंतजाम नहीं, कोई, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। इतनी हाई पावर बैटरीज हैं, जनरेटर्स हैं पाकिस्तान में, जहां पे लोड शेडिंग है टावर्स काम करना छोड़ देते हैं। नेट या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा या इतना स्लो हो जाएगा कि आपके काम पे फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। लेकिन ये ज़हन में रखें, बड़ी लंबी दाढ़ी वाले मेजर जनरल पा हफीज वो इसके सरबराह हैं और इनको कोई नहीं पूछ रहा। गजा पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है, इजराइल ने किया है, और एक खातून समेत 10 अफराद उसमें शहीद हो गए हैं। 10 अफराद। गजा पीस बोर्ड बना, सारा को नोबेल प्राइज, सारा आप जानते हैं। लेकिन अब मैंने आपको कहा था 15 जुलाई, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 जुलाई 2016 क्यों तुर्क अवाम के लिए अहम है? सल्तनत उस्मानिया के 1923 में खत्म होने और तुर्की के जन्म लेने के बाद तुर्क अफवाज ने 80 साल तक सियासत में मुदाखलत की। 80 साल, 4 दफा हुकूमतों के तख्त गिराए, एक वजीर आजम को फांसी दी, कोई वजीर आजम अपनी मियाद मुकम्मल न कर सका, हर वजीर आजम को जेल भेजा, मिशत तबाह हो गई, फौजी जनरल अमीर से अमीर तर हो गए, $1 80,000 लीरा के बराबर आ गया, तुर्की को यूरोप के बीमार शख्स का खिताब मिल गया, मुल्क दिवालिया हो गया। ये मेहरबानी है यूनिफॉर्म की। यहां पे कौन सी कहानी है जी? और फिर तुर्कों को एहसास हुआ कि बस अब और नहीं। यहां से रजब तैयब अर्दवान का 25 साला सिविलियन दौर शुरू हुआ। आज तुर्की G20 का हिस्सा है।
सऊदी अरब और इंडोनेशिया को जीडीपी में पीछे छोड़ चुका है। पूरे खित्ते में जंगो जदल जारी है, लेकिन तुर्की के बॉर्डर्स महफूज हैं। मुल्क में अमन अमान है। तुर्की टूरिज्म में दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। यूरोप की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज है। ड्रोन की मिनी सुपर पावर कहलाता है। ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग में तुर्की में एक पटाखा भी नहीं फटा। आज $1 45 लीरा के बराबर है। 45, हमारा 280 का है। मौजू की मुनासबत से एक तहरीर सफीर करामत गौरी के कलम से भी पढ़े। ये सफीर थे करामत गौरी। इस मुलाकात में जनरल मुशर्रफ, उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान थे और मैं, करामत गौरी कह रहे हैं। सदर सुलेमान डेमरल, तुर्क सदर, ने गुफ्तगू के दौरान इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी से कहा, जनरल, मुझे अमली सियासत में 50 साल से ज्यादा का अरसा हुआ है। मुशर्रफ को कहा, और इस तवील अरसे में जिस अमल ने मेरे मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो सियासत में फौज की मुदाखलत है। हमारे जर्नैलों के ज़हन में भी ये वहम था कि वो मुल्क को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब भी वो अपना शो दिखाकर अपनी बैरकों में वापस आए, हालात पहले से भी ज्यादा खराब होते गए। जनरल साहब, दुनिया की कोई फौज किसी मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकती। मैं ये बात अपने जाती तजर्बे की बुनियाद पर कहता हूं। मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं और मैं आपको अपना छोटा भाई समझता हूं। मुशर्रफ को कह रहा है, इसलिए एक बड़े भाई की हैसियत से मेरा मशवरा है, जितनी जल्दी हो सके इक्तदार वापस सियासतदानों के हवाले कर दें और अपनी बैरकों में वापस आ जाएं। मैं देख रहा था कि जनरल मुशर्रफ के चेहरे पर रंग आते जाते हैं। वो क्या सोचकर आए थे और क्या हुआ? सुलेमान डेमरल ने उनकी उम्मीदों पर ठंडा पानी डाल दिया था। तालियां बजाने के बजाय उनके कान मरोड़े। जब मीटिंग खत्म हुई और हम बाहर निकले तो मुशर्रफ ने मुझसे और शमशाद से कहा, क्या सुलेमान डेमरल ने बहुत ज्यादा नहीं कहा? वहां से हम अगली मुलाकात के लिए वजीर आजम बुलंद एजवत के दफ्तर पहुंचे, जहां मिस्टर एजवत तेज छुरियों के साथ तैयार बैठे थे। सुलेमान डेमरल के मुकाबले में उससे फौज ने बहुत ज्यादा काटा था। एक मौके पर मिस्टर एजवत ने तफरीह के लिए जनरल मुशर्रफ से यहां तक कहा, जनरल साहब, हमारे दोनों ममालिक की बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं और अब हम इस स्कोर पर बराबर हैं कि दोनों मुल्कों में जर्नैलों ने 4 बार सियासी अमल में मुदाखलत की। एजवत की भारी मजाक पर जनरल मुशर्रफ का चेहरा लटक गया, लेकिन वो क्या कर सकते थे? बात बिल्कुल दुरुस्त थी, इसलिए उन्हें कड़वी गोली निगलनी पड़ी। वो ये नहीं कह सकते थे कि तुर्कों ने उन्हें सिर्फ डांटने के लिए घर बुलाया था। आखिर वो खुद भागते हुए तुर्की आए थे। साल 2016 तक तुर्की में एक मजबूत जमहूरियत आ चुकी थी। तुर्की तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था। ये सूरत हाल अमरीका और इजराइल के लिए नाकाबिल कबूल थी। अमरीका में मुकीम एक गद्दार वतन मौलन फातीज ने अमरीका के साथ मिलकर तैयब अर्दवान के खिलाफ फौजी बगावत की साजिश की। बाजवा तुर्क अवाम सड़कों पर निकल आई। सैकड़ों तुर्क अवाम टैंकों, बंदूकों और F-16 के सामने खड़े हो गए और वतन पर कुर्बान हो गए। फौजी बगावत नाकाम हुई। फौजी अफसरों को अवाम और पुलिस ने पकड़कर जेल में डाला और हमेशा के लिए फौजी बगावत का दरवाजा बंद कर दिया। अमेरिका के रजीम चेंज प्रोग्राम को तुर्क अवाम ने नाकाम बना दिया। काश लोग निकल आते इमरान खान वाले दिन। आज तुर्क फौज के लिए अलहदा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, क्लब, घर, प्लॉट और हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। फौज के लिए एक फौजी अफसर और सिविलियन के मरात में कोई फर्क नहीं। किसी सिविलियन इदारे का सरबराह कोई रिटायर्ड जनरल नहीं। किसी जनरल को एक्सटेंशन नहीं मिलती। 90% तुर्कों को अपनी अफवाज के सरबराहों के नाम ही नहीं पता कि हमारा सरबराह कौन है फौज का। वो सिर्फ तैयब अर्दवान को जानते हैं।
बस सदर को, वज़ीर आज़म को, किसी रिटायर्ड जनरल को सियासत में दाखिल होने की इजाजत नहीं। रिटायर्ड को देखो, जो नौकरी की है, पेंशन लो, खाओ पियो तो नसो, और कितनी तरक्की कर ली है तुर्की ने। यहां पे एक आखिरी खबर और उसके बाद मेन मुद्दा, यूरोप से बड़ी तशवीशनाक खबर आई है कि 2050 में जो पूरा यूरोप होगा वो बूढ़ा होगा, क्योंकि जो शरह पैदाइश है वो न होने के बराबर है। कोई बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहता। जिन्स को एक खेल समझ लिया गया है, लड़की को या औरत को एक खिलौना समझ लिया गया है, एक खरीदने वाली चीज समझ लिया गया है, लिहाजा शरह पैदाइश खत्म। और 2050 में आपको सारा यूरोप वो बूढ़ा नजर आएगा, क्योंकि बच्चे हैं नहीं। जापान के बारे में भी यही मशहूर है, जापान में भी बच्चे नहीं है, बूढ़ों का मुल्क है। इसी तरह अब यूरोप के बारे में कहा जा रहा है। पीटीआई ने इमरान खान के एक फैसले की खिलाफवर्जी की है। इमरान खान ने कायमा कमेटियां छोड़ने का हुक्म दिया था, लेकिन कायमा कमेटियों में टीएडी बहुत ज्यादा है, रोज की बुनियाद पे पैसे मिलते हैं, मुराद बहुत ज्यादा है, गाड़ियां हैं। अब उन्होंने कहा कि वो कायमा कमेटियों में जाएंगे खुद ही। जी जाहिर है, माल ले, हर कोई ले रहा है, हर कोई माल पकड़ो। जो यहां पे दीन ईमान है, जो मां बाप है, वो माल है। आजकल जो मुद्दा चल रहा है वो है शोधा, लेकिन ये फिक्र अंगेज जरा आपने सुनना है कि इन शोधा के जिम्मेदार कौन होते हैं। फौज की तनख्वाह और बॉर्डर्स पर शहादत या मौत। ज़ियारत में मरने वाला सिपाही अपनी मर्जी से भाग गया था। ज़ियारत में रावलाकोट में मरने वाला रेंजर एहलकार किसने वहां भेजा था? जरा ऊपर से आए। कारगिल में हजारों फौजियों की मौत का जिम्मेदार कौन था? जी हां, आप समझ गए हैं, फौजी फैसला साज और फौजी जर्नैल आम सिपाह की मौत के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। जंग में सिपाह मरते रहते हैं, ठीक है, बल्कि सिपाही ही मरते हैं, जर्नैल तो नहीं मरते। कभी मरा है? लेकिन यह किसका फैसला था कि 78 साल तक बलोचिस्तान में आजाद इलेक्शन नहीं होने देने, ताकि वो लोग हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएं और फिर अपने ही हम वतन सिपाहियों को निशाना बनाना शुरू कर दें? किसका फैसला था? एक के बाद एक फौजी जर्नैल का, सबका। यह किसका फैसला था कि पाकिस्तान हर अमरीकी जंग लड़ेगा, कबायली इलाकों में इंतहा पसंदी की फैक्ट्रियां खोलेगा, पूरी दुनिया से जंगजू इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, और फिर नतीजतन पूरे मुल्क में सिपाहियों के साथ आम अवाम भी मरते रहेंगे, एक के बाद एक फौजी जर्नैल का। अब यह देखें कि एक के बाद एक फौजी जर्नैल ये फैसले क्यों करता फिरा। अयूब खान सियासतदानों को अख्तियारात नहीं देना चाहता था, मुफ्ती बानी के हाथों अपने सिपाही मरवाए, मुल्क दो लख्त करवा दिया। ज़ियाउल हक और मुशर्रफ को अपने इक्तदार के लिए अमरीकी आशीर्वाद चाहिए थी। उसके नतीजे में मुल्क कितना बर्बाद हुआ, कितने सिपाही मरे, किसी जर्नैल को कोई तकलीफ नहीं हुई। अब इसी कश्मकश का शिकार आसिम मुनीर है। अगर ताकत इस्तेमाल नहीं करेगा, नाजायज कब्जे के लिए सिपाही नहीं मरवाएगा, आइन कानून इंसाफ के दरवाजे खोल देगा, तो उसका अपना इक़्तिदार खत्म हो जाएगा। सिंपल। आप कई दिन बन रहे हैं। कारगिल की पहाड़ी पर बैठा ज़ियारत की किसी चौकी या रावलाकोट में गश्त करता एहलकार फौज का फैसला साज नहीं है, तो ड्यूटी कर रहा है। फौज के फैसला साज वो मोटी तोंदों और बंद दिमागों वाले हैं जिनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बुलेट प्रूफ घर हैं, जिनकी सिक्योरिटी पर हजारों तैनात हैं, जिनकी तनख्वाह लाखों, मराद करोड़ों और रिटायरमेंट अरबों की है। तनख्वाह के बदले मौत के ताने उन्हें मारें जो इन हजारों आम सिपाहियों की मौत के जिम्मेदार हैं।
تنخواہ کے بدلے موت کی آفر انہیں کریں جو ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ عام سپاہی بھی مرتے ہیں اور عام شہری بھی مرتے ہیں۔ اگر آفر ہی کرنی ہے تو کسی سپاہی کی تنخواہ نہ آفر کریں، کسی جرنیل کا پورا پیکج آفر کریں، پھر دیکھیں جواب کیا آتا ہے۔ کون ذمہ دار ٹھہرا؟ اپنے پھر گئے کیا نہیں گیا؟ اسامہ بن لادن کو دے کے سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ کروا کے مشرف گیا، 80,000 بندے مروا کے، ضیاء گیا، یہ بھی چلے جائیں گے، باجوہ گیا۔ ان کو کیا ہوتا ہے؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ مائیں، وہ جوان بیویاں، میں کوئی شہادت کی اللہ معاف کرے، قرآن نے گواہی دی ہے، لیکن کیوں زبردستی؟ کیوں؟ اپنے اقتدار قائم رکھنے کے لیے، اپنی اتھارٹی دکھانے کے لیے لازمی جوان مروانے ہیں۔ یعنی ایران اور امریکہ کے اتنے بندے نہیں مرے جتنے 3-4 دنوں میں ہمارے شہید ہو گئے ہیں، کشمیر میں، بلوچستان میں، KPK میں۔ کیوں؟ وجہ ان کو جینے کا حق نہیں ہے، انہوں نے وردی پہن لی ہے تو انہوں نے مرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔